Hi, students of class 6th, and welcome to Almanar online classes. Students, today we are going to discuss the very first poem, Mother to Son, written by Langston Hughes from your main course book, that is New Oxford Modern English. So, at first, let's know about the poet. Langston Hughes was born in the year 1901 and left the world 1967. He was an American poet, novelist, playwright, and a social activist. Students, a novelist is a person who writes novels. A playwright is a person who writes plays for the theater, television, and radio. And social activist is a person who works for the welfare of the society. Right. So Langston Hughes was not only a poet but also a novelist, playwright, and a social activist. Mother to Son was first published in a magazine, and the name of that magazine is The Crisis. That was published in 1922 and it was later collected in a Hughes' first book. And the name of his first book is The Weary Blues. That was published in 1926. The poem, written in free verse, is a dramatic monologue. Students, free verse means a poem which has no rhyming scheme. It is in free verse. Dramatic monologue means a poem which is in a conversational form, right? It describes the difficulties that black people face in a racist society. The poem has been written in the context when black Americans were the slave of white Americans, and the black Americans were facing atrocities of white Americans, and they were not getting proper rights, right? The poem also argues that black people can overcome the obstacles and challenges in their life through persistence and resilience. The poet tries to convey that the black people can have their proper rights only through firm determination and perseverance. Now open your book and follow me. Well, son, I'll tell you, life for me ain't been no crystal stair. It's had tacks in it, and splinters, and boards torn up, and places with no carpet on the floor bare. अब इसमें मदर अपने सन को एड्रेस कर रही है कि बेटा जो लाइफ है वो इतनी आसान नहीं है. क्रिस्टल हेयर रेफर्स टू कंफर्टेबल, इजी एंड स्मूथ. लाइफ जो है वो इतनी आरामदायक नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. और वो क्या है? इट हैड टैक्स इन इट. टैक्स मीन्स होते हैं शार्प कील. जो शार्प नेल्स होते हैं उसे बोलते हैं टैक्स, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. It's text, right? It is the picture of text. स्प्लिंटर्स ऐसे नुकीले लकड़ी को बोलते हैं जो वन एंड से शार्प होते हैं, राइट. इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिंटर्स बोलते हैं. तो लाइफ में क्या होते हैं? बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं. अप्स एंड डाउन्स का सामना, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है. तो माँ अपने सन को एड्रेस कर रही हैं और उन्हें एडवाइस कर रही हैं. क्या एडवाइस कर रही हैं? एंड बोर्ड्स टर्न अप. अब जो लाइफ की जो सीढ़ी है उसके जो तख्ते हैं, बोर्ड्स मीन्स तख्ते, टर्न अप मीन्स ब्रोकन. तो ये क्या है? टूटा हुआ है. एंड प्लेसेस विथ नो कार्पेट ऑन द फ्लोर. अब प्लेसेस आर जो है वो पूरी तरीके से रफ हैं, है ना, और ये बेयर है, डैट इज़ टोटली एम्प्टी. एंड यू हैव टू फेस दैट योर ओन. But all the time I has been climbing on and reaching landings and turning corners and sometimes going in the dark where there ain't been no light.
अब आगे वो क्या कह रही हैं कि इन सब परेशानी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफ़िकल्टीज, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स, आई एम बिन क्लाइंबिंग एंड रीचिंग द लैंडिंग्स। लैंडिंग क्या बोलते हैं, एक उसको बोलते हैं जब आप सीढ़ी चढ़ते हो तो एक फ्लैट सा सरफेस आता है, उसे क्या बोलते हैं, लैंडिंग्स बोलते हैं। तो मैं क्या इन सब परेशानी के बावजूद क्या होता है, एक लैंडिंग आता है, एक सरफेस एरिया आता है और टेढ़े मेढ़े कॉर्नर्स होते हैं उसमें। फिर क्या होता है, देन समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, और कभी वो रास्ता क्या होता है, उस रास्ते पे अंधेरा हो जाता है और वहाँ पे कोई रोशनी भी नहीं होती, राइट। So boy, don't turn back. Don't you set on the steps, cause you find it's kinda hard. Don't you fall now. For I's still going, honey, I still climbing. And life for me and been no crystal stair. अब फिर से वो कहते हैं बेटा तुम परेशानियों से हार मान कर स्टेयर पे बैठ मत जाना। वॉट एवर द प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स यू फेस इन योर लाइफ, जस्ट फेस इट करेजियसली। ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए उससे हार मान कर बैठ मत जाना। जो भी परेशानी आए उसे हिम्मत से और साहस से फेस करना अपने गोल को अचीव करने के लिए। डोंट यू फॉल नाउ, कि बी वेरी 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 केयरफुल वाइल फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, राइट। वो क्यों ऐसा क्यों करना है कि तुम मुझे देखो, हनी मीन्स डेयर, बेटे के लिए यूज़ करा है कि मेरा प्यारा बेटा तुम मुझे देखो, मैं अभी भी क्या कर रही हूँ, ज़िंदगी की जितनी भी परेशानी है उन सब का सामना कर रही हूँ। एंड लाइफ फॉर मी एंड बिन नो क्रिस्टल स्टेयर, लाइफ क्या है, एक कंफर्टेबल स्टेयर नहीं है, आरामदायक सीढ़ी नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स यू विल हैव टू फेस ऑब्स्टिकल्स, you will have to face so many problems and difficulties in your life, so face it courageously. So इस पोम के ज़रिए से माँ अपने बेटे को इनक्रेज कर रही है, मोटिवेट कर रही है कि ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए तो आपको हार नहीं मानना है, कि ऑलवेज कीप ट्राइंग, डेफिनेटली यू विल गेट योर सक्सेस, डेफिनेटली यू विल गेट योर गोल वट एवर यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ। तो बाकी जो एक्सरसाइज है इस पोम के विल डू डैट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय।